Yeah. So as you all know that today's topic is the universe, and we all know that this topic comes under a topic which is known as astronomy. Okay, let's see what this astronomy is. We all know, like, when it comes to astronomy, what people think like astronomy is only about telescope, or like only about stars. Okay, but that's not the case. Actually, it includes many things. So we'll see what this astronomy is, and we'll realize at the end of this topic, we'll realize how small we people are. Okay, I guess I'm audible properly. So let's start. So okay, so first we'll see that what the stars are like. Like if you're sitting on a ground, what we get to see on any clear dark night. Okay, so let us imagine that we are sitting on any clear dark night on ground. Okay, and let's see what we get to see in skies. Okay, we'll see that the sky is full of stars. Okay, बहुत सारे stars हमें दिखाई देंगे sky में, लेकिन वो depend करता है कि where we are. Like suppose अगर हम लोग किसी city में है, तो हमें दिखाई देगा कि like sky में देखा बहुत कम stars है. Only few stars will be visible to us. Only the brightest stars will be visible to us. Okay, but like अगर हम लोग किसी लाइक डार्क प्लेस पर है इन सम विलेज, देन हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहां पर बहुत सारे स्टार्स विजिबल होंगे हमें. So so these stars which are visible to us, what our brain does it, okay, it starts forming star patterns out of it. So these easily recognizable star patterns in the sky, okay, they are known as constellations. We call them something known as constellations, or in Hindi or in our local language, we call it as something known as Tarka Samuha. Okay, so these are what we call as constellations. Now, our astronomers, okay, like, see, the thing is like, if I start imagining something, we can imagine anything we want. Like it's not necessary जो pattern मैं imagine कर रही हूँ वो same pattern कोई और imagine करेगा. Okay, like different civilization में different star patterns है, different constellations है. Like Greek civilization में जो star patterns या फिर constellations है वो अलग है. Indian civilization के star patterns है वो अलग है. Okay, so different star patterns hai sky mein. Okay, but what modern astronomers did, they divided constellations into 88 parts. So now we know that there are 88 constellations in sky. Okay, there are 88 constellations in sky, but out of this 88 constellations, there are 12 constellations which are very special to us. Okay, let's see what these 12 constellations are. Okay, so we start like what we can see in dark night. As I told you, we can see that lot of different things. Okay, we'll start with constellation first, but only stars and constellations are not there. See, stars, all these stars, they come together to form something known as constellations. Then there are different things in the skies. You can see there are stars, then there are group of stars. Now these group of stars are different from constellations. Constellations are like huge figures. Okay, but these groups of stars are different, and then we have something known as nebulae, and there are something known as galaxies. We'll see these things individually. Okay, and in case if you feel like my voice is not proper, you can just ma'am, you can just let me know. Okay. Okay, so you can see here, this is very famous constellation. This is constellation of Orion. Okay, and as you can see, like if we observe sky for some time, we can see that all these constellations are there in the skies, but all the stars in this constellation or in the skies, they are not of same color. You can even see that there's one star here is like, but I'm so sorry, is reddish in color, and and all other stars, they are a bit bluish in color. Okay, so there are stars with different colors in the skies. Okay, and what do we know from these colors of these stars? Okay, the thing is, these reddish color stars, okay, we know that this reddish color stars, they are cooler stars, and the blue color stars, they are very hot stars. So red color stars, they are very cool, as I told you. So let's see, like we can, let us just compare like their surface temperatures. What are the surface temperature of these stars? So जो रेड कलर के स्टार होते हैं, ऐसे टोल्ड यू, दे आर कूल स्टार. सो उनका जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो 2000 डिग्री सेल्सियस या फिर 3000 डिग्री सेल्सियस होता है. सो अगर हम लोग बोलेंगे 2000 डिग्री सेल्सियस एंड 3000 डिग्री सेल्सियस, ये कैसे ठंडा हुआ या फिर ये कैसे कूल हुआ? सी आर टेम्परेचर ऑन अर्थ और लाइक समर टेम्परेचर इज लाइक जो मुंबई या फिर इंडिया में होता है वो अप्रोक्सीमेटली 40-45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. Okay, but इनका surface temperature is around 2000-3000 degree Celsius, and we are saying these stars are cooler stars.
बट लेट्स जस्ट चेक कि जो ब्लू कलर के स्टार्स होते हैं उनका सरफेस टेम्परेचर कितना होता है. जो ब्लू कलर के स्टार्स होते हैं उनका सरफेस टेम्परेचर अराउंड 13,000 डिग्री सेल्सियस या फिर 14,000 डिग्री सेल्सियस होता है. सो नाउ यू कैन इमेजिन कि जो रेड कलर के स्टार्स है वो कितने कूल है एज कंपेयर टू दिस ब्लू कलर स्टार्स. Okay, so now we know what are things are visible in the sky. So apart from stars, we can see the star constellations of these stars, and we can see that these stars they have colors. Okay, now let's move. Okay, to something known as, I told you that there are 88 constellations in the skies, and out of these 88 constellations, we know there are 12 constellations which are very special to us, and we call these constellations as something known as zodiac signs. Okay, like, the thing that you read in horoscope. Okay, the zodiac signs. Okay, so let us see why these zodiac signs they have this kind of name like Taurus, Aries, or Pisces. Okay, and why these are special to us. So as we all know that earth revolves around sun. Okay, but from earth what we see is that sun revolves around earth. So that annual path of sun, okay, that annual path of sun is divided into 12 parts, and each part, okay, each part is known as one zodiac. Okay, that imaginary line in sky is known as one zodiac. So basically what is happening here is, like, if this is sun, earth is going around sun. Okay, when earth is going around sun, now let's see, these are the stars. Okay, in background of sun. So naturally if earth is here, from earth we won't be able to see these stars. Okay, so that time we say that these sun is in this constellation. Okay, now when earth move ahead in this orbit, okay, what we'll see that in background of sun, this constellation is there. Of course naturally this constellation it won't be visible to us, so basically we'll say that the sun is in that constellation. So this is how that path, okay, that path of sun, or the actually orbit of earth is divided into 12 parts, and each part is known as one zodiac. Okay, so let's see what all zodiac signs are there. So basically the zodiac signs, these are nothing but the constellations, that constellation which lies on the annual path of sun. Okay, so we all know that there are 12 constellations starting from Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Sagittarius, Capricornus, and Aquarius, and last one is Pisces. So ये हमारे पास 12 राशि या फिर जो 12 राशि चक्र कहते हैं वो है. अभी ये जो 12 जोडियाक साइंस है या फिर जो 12 कॉन्स्टलेशन जो हमने कहा अभी, 12 जोडियाक कॉन्स्टलेशंस जो है वो जो हमारे पास आए हैं, जो अब हम आज भी फॉलो करते हैं, वो इंडियन सिस्टम नहीं है. ओके, ये बेबीलॉन्स ने हमको ये सिस्टम दिया है. ओके, बट जो इंडियन है, ओके, बिकॉज ये जो पाथ है, ये जो राशिज है, वो एक्चुअली सन का पाथ है इन स्काई. ओके, वी इंडियंस जो है हम लोग जो ज्यादा इम्पोर्टेंस है वो हम मून के पाथ को देते हैं. इफ यू सी हमारे बहुत सारे जो फेस्टिवल्स है वो मून के पाथ पे डिपेंडेंट है या फिर मून के फेजेस पे डिपेंडेंट है. जैसे हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं ऑन अमावस्या, या फिर हम लोग बाकी के जो कुछ फेस्टिवल्स है, जैसे हम लोग नाग पंचमी सेलिब्रेट करते हैं, या फिर होली सेलिब्रेट करते हैं जो पूर्णिमा के वक्त आता है. सो हम लोग हमारा जो फेस्टिवल्स है या फिर हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस जो दिया है या फिर जो कैलेंडर फॉलो जो हमने किया है वो मून के फेजेस पे हमने किया है इंडियंस ने. सो हमने क्या किया, सो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग सन्स पाथ, हमने मून के पाथ को, ऑफ कोर्स वी नो दैट इवन मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ. ओके, मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ. सो जो मून का पाथ है इन स्काई, ओके, मून का जो मंथली पाथ है इन स्काई, उसको हमने क्या किया, उसको 27 पार्ट्स में डिवाइड किया है, and each part is known as one nakshatra. Okay, so from sun we get something known as zodiac signs, जो sun का पाथ है, and जो moon का पाथ है वहां से we get something known as nakshatras. So these nakshatras are nothing but the monthly path of sun, moon. जो moon का जो imaginary पाथ है स्काई के अंदर, उसको हमने क्या किया, as I told you 27 पाथ में डिवाइड किया. So you can see how many nakshatras are there. So it starts from Ashwini, Bharni, Kritika, okay, and then it ends with Revati. So there are 27 nakshatras. Now let's just move ahead. So as I told you, these nakshatras, okay, these are not included in these 88 constellations. These are different from, these are like completely Indian.
So these are not included in those 88 constellations. So those 88 constellations were formed by international bodies. Okay, which is known as, that body is known as International Astronomical Union, and that body is responsible for naming of stars or naming of planets. Okay, so these nakshatra, these are completely Indian, and as I told you, ये जो नक्षत्रास है वो जो हमने 88 कॉन्स्टलेशंस देखे उसके अंदर नहीं है, मतलब उनका नाम नहीं है उनको. ओके, सो सिर्फ हमें स्टार्स विजिबल नहीं है, आई टोल्ड यू, सिर्फ स्टार्स हमें स्काई में विजिबल नहीं है, स्टार्स के साथ में देयर आर प्लैनेट्स. ओके, एंड हमने शायद सबने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होता है कि जो प्लैनेट्स है वो हमें स्काई में दिखाई देते हैं, एंड जो एक बड़ा प्लैनेट है जिसके अराउंड रिंग है उसको सैटर्न कहते हैं. बट अगर हम लोग बाहर जाएंगे रात को और हम स्काई में देखने का कोशिश करेंगे तो हमको नेचुरली कोई ऐसा प्लैनेट दिखाई नहीं देगा जिसके अराउंड रिंग्स है, या फिर हमको कोई जुपिटर ऐसा बड़ा सा प्लैनेट दिखाई नहीं देगा स्काई में डायरेक्टली, या फिर हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं. ओके, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम स्टार्स. व्हाई? बिकॉज ये जो प्लैनेट्स है ये भी हमसे काफी ज्यादा दूर है. सो हम लोग अगर स्काईज में देखने जाएंगे शाम को तो हमको स्टार्स दिखाई देंगे, स्टार्स के साथ वहाँ प्लैनेट्स भी होंगे, बट हमें वो लाइक डिफ्रेंशिएट करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज ये प्लैनेट्स भी हमसे काफी दूर है. देन हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट? हमको पता कैसे चलता है कि कौन से प्लैनेट्स है एंड कौन से स्टार्स है? ओके, भले ही ये स्टार्स, सॉरी, भले ही ये प्लैनेट्स हमसे काफी ज्यादा दूर है, बट जो स्टार्स है उनसे ही हमसे काफी ज्यादा पास में है. सो इसलिए हमें क्या दिखाई देता है कि जो प्लैनेट्स है ना वो स्टार्स के बीच में मूव करते हैं. ओके, दे मूव विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्स. ओके, सो देखते, इमेजिन करते ये कैसा होता है. सो ऐसा इमेजिन करना है कि हम लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से या फिर कार से, किसी भी व्हीकल से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं. तो हमारी जो हमारे पास की चीजें हैं, अगर हम उन्हें देखते हैं तो हमें ऐसा पता चलता है कि वो जो चीजें हैं वो काफी फास्ट मूव कर रहे हैं जब हमारी ट्रेन चल रही है. ओके, लेकिन जो काफी दूर की चीजें हैं हमें ऐसा दिखाई देगा कि वो काफी स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं, जैसे कोई पहाड़ है या फिर काफी बड़ी बिल्डिंग है. ठीक है, तो ये सेम थिंग ये प्लैनेट्स के साथ होता है. ओके, जो प्लैनेट्स है वो भी मूव करते हैं स्काई में, स्टार्स भी मूव करते हैं, लेकिन स्टार्स हमसे काफी ज्यादा दूर है इसलिए वो हमें कभी मूव करते हुए नहीं दिखाई देते हैं. बट प्लैनेट्स हम देख सकते हैं कि जो प्लैनेट्स है वो स्टार्स के बीच में, या फिर दे मूव विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्स. ओके, इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट्स थे, जो एंशिएंट पीपल ने ऑब्जर्व किया कि ये ऑब्जेक्ट्स जो है प्लैनेट्स के बीच में मूव करते हैं, इसलिए दे स्टार्टेड कॉलिंग, सॉरी, स्टार्स के बीच में मूव करते हैं, इसलिए दे स्टार्टेड कॉलिंग दीज ऑब्जेक्ट्स एज प्लैनेट्स. सो ये जो प्लैनेट वर्ड है, ओके ओके, दिस वर्ड मीनिंग, ओके, इट्स लिटरली मीनिंग इज वंडरर्स. सो प्लैनेट्स नाम का, सॉरी, प्लैनेट नाम का जो मीनिंग है उसका मीनिंग ही वंडरर्स या फिर घूमने वाले ऑब्जेक्ट्स है. सो देखते हैं. सो द थिंग इज कि मैं हर प्लैनेट्स का यहाँ पर इंफॉर्मेशन, लाइक उनका डायमीटर क्या है या फिर उनका मास क्या है, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट. द थिंग इज कि हाँ, ये जो डेटा है हमको वो कहीं पर भी मिल जाता है, बट लेट्स जस्ट कंपेयर दीज ऑब्जेक्ट्स विद आवर अर्थ. As you can see from here that Jupiter is the largest planet in our solar system. Okay, and just not just the largest planet, it's a massive planet. उसका mass जो है वो काफी ज्यादा है. Okay, and you can see how small Earth is in front of Jupiter. So you can see like how small we people are in front of this giant planet. And think about these four planets. Okay, let me tell you which four planets I'm talking about. I'm talking about Mercury, then Venus, then Earth and Mars. So these four planets, we call these four planets as terrestrial planets. Why we call them as terrestrial planets? Because they have solid land to stand on. इनके पास जमीन है जहां पर हम लोग खड़े रह सकते हैं. But when we come to the other four planets, okay, that is Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Problem with these planets, they are so huge and they are very far away from sun. ओके, एंड उनका उनका जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो पूरा गैस से बना हुआ है. देयर इज नो सॉलिड लैंड टू, जस्ट अ मिनट, आई एम सो सॉरी, देयर इज नो सॉलिड लैंड टू स्टैंड ऑन इट. And you can see that there is beautiful ring around Saturn. Now let us just compare how small our Earth is in front of Sun. So you can see, I can put, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 109
अर्थ को क्या कर सकते हैं, जो सन का डायमीटर है वहां पर फिट कर सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा सन है एज कम्पेयर टू अर्थ। ओके, अगर हम जुपिटर को भी कंपेयर करते हैं एज कम्पेयर टू अर्थ, सो यू कैन सी हम लोग जुपिटर पे अप्रोक्सीमेटली 11 अर्थ फिट कर सकते हैं। जुपिटर के सिर्फ डायमीटर पे 11 अर्थ फिट कर सकते हैं, इतना बड़ा जुपिटर है एज कम्पेयर टू आवर अर्थ। एंड देयर इज वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक आपको स्पॉट दिखाई देगा, इससे यहाँ पर स्पेसिफिकली वो अर्थ डाली नहीं गई है। सो ये जो स्पॉट है, दैट स्पॉट इज नोन एज ग्रेट रेड स्पॉट। उसको कुछ 400 साल पहले फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था। क्योंकि जब से उसको ऑब्जर्व किया आज तक भी वो स्पॉट हमें दिखाई देता है। वो स्पॉट एक्चुअली हमको थोड़ा बहुत रेडिश दिखाई देता है, इसलिए वी कॉल इट एज ग्रेट रेड स्पॉट। अगेन द थिंग अबाउट दिस स्पॉट इज लाइक वो कोई जैसा जमीन का कोई ये नहीं है, फिनोमेना नहीं है। इट इज एक्चुअली ह्यूज साइक्लोन, वेरी मॉन्स्टरस साइक्लोन जो जुपिटर पे चल रहा है, जो काफी सालों से चल रहा है। ओके, and now let us see how these planets are, how they look in front of sun. So you can see how small Jupiter, okay, Jupiter is in front of sun. हम देख सकते हैं कितना बड़ा जो प्लैनेट हमको दिखाई दे रहा था थोड़ी देर पहले, जुपिटर अर्थ के सामने। ठीक है, अब हम देख सकते हो कितना छोटा सा प्लैनेट है जुपिटर के साथ, सॉरी सन के सामने। और इनफैक्ट जो हमारा अर्थ है वो लाइक हार्डली हमको विजिबल है। सो द थिंग इज, जो हम हमारे बारे में कहते हैं कि लाइक वी आर डोमिनेंट इन यूनिवर्स, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि हम कितने छोटे हैं ये यूनिवर्स के अंदर। अभी हुआ हमारे सन की बात, बट जस्ट लेट मी टेल यू दैट सन इज लाइक अ मीडियम साइज स्टार। देर आर स्टार्स जो क्या है सन से काफी बड़े हैं, देर आर सम स्टार्स जो सन से काफी छोटे हैं। So let us see कि हमारा सन का साइज क्या है। We'll just compare out some famous stars. When I say famous stars, famous stars are the brightest stars in the skies. So what we'll do is we'll compare our sun, okay, with some of the brightest stars in the skies. और देखेंगे हम कि हमारा सन जो है वो कितना बड़ा या फिर कितना छोटा लगता है ये और स्टार्स के सामने। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने सन को कंपेयर किया है। यहाँ पर 4 स्टार्स है, एक है सीरियस, पोलक्स एंड आर्कट्रस। सो हाँ, अगर ये जो पोलक्स एंड आर्कट्रस है, अगर आपको उसका नाम याद नहीं रहेगा ठीक है, फिर कोई बात नहीं है, बट आप यहाँ पर एक नाम है सीरियस। ओके, सीरियस अगर आपने कभी सुना रहेगा तो सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। आप देख सकते हो कि सन उसके सामने कितना छोटा दिखाई दे रहा है। ओके, बट अगर आप सीरियस को कंपेयर करते हो पोलक्स एंड आर्कट्रस से, तो आप देख सकते हो कि सीरियस इटसेल्फ इज नॉट दैट ह्यूज। ओके, आप देख सकते हो कि वो भी काफी छोटा स्टार है। नाउ लेट अस जस्ट कंपेयर दीज 4 स्टार्स विद सम अदर स्टार्स। ओके, नाउ सी, we're comparing these 4 stars, like earlier stars with Betelgeuse and Antares, and you can see that sun is hardly visible. Okay, even Sirius is not visible. Okay, the soul that shown with arrow is our solar system. You can see how small our solar system is in front of these stars. Okay, these stars are huge stars. You can fit, like you can see how many solar system we can fit into these stars. So you can see like how small we people are. And you can see one more thing here, that these stars, they have different colors. This regal is blue color star. So whenever we see the blue color stars, we should immediately know that, or immediately it should come to our mind कि जो blue color के stars होते हैं, ये कैसे stars होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हॉट स्टार्स होते हैं। इमीडिएटली अगर हम लोग कोई रेडिश कलर स्टार या फिर ऑरेंज कलर स्टार देखते हैं तो हमको ये पता चल जाना चाहिए कि जो रेडिश कलर स्टार्स या फिर ऑरेंज कलर स्टार्स है वो कैसे स्टार्स है, कूल स्टार्स है। तो हमको क्या पता चलता है कि अगर हम लोग किसी स्टार को देखते हैं तो उसका कलर देख के हमें उसका टेम्परेचर पता चलता है। ठीक है, सो लाइक दिस इज हाउ सिटिंग ऑन अर्थ वी कैन कैलकुलेट व्हाट द टेम्परेचर ऑफ स्टार इज। ओके, हम लोग ऑब्वियसली स्टार के पास कोई थर्मामीटर लेकर जाते नहीं है। ठीक है, ओके, सो हमने देखा कि अभी स्टार्स है स्काई में, स्टार्स के डिफरेंट फॉर्म्स है स्काई में। हमने देखा कि स्टार्स जो है, स्टार्स के डिफरेंट कलर्स है। ओके, स्टार्स के डिफरेंट टेम्परेचर्स है। कुछ स्टार्स जो है वो सन से काफी ज्यादा बड़े हैं, कुछ स्टार्स जो है सन से काफी ज्यादा छोटे हैं।
ठीक है, अब ये बहुत सारे जो स्टार्स है वो साथ में आकर एक ग्रुप बनाते हैं, नॉट कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशंस काफी बड़े होते हैं स्काई में, एंड जो कॉन्स्टलेशंस होते हैं उनके स्टार्स एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं, उनके स्टार्स जो होते हैं वो एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर होते हैं। ओके, बट बहुत सारे स्टार्स क्या होते हैं एक साथ आकर, या फिर जब स्टार्स का फॉर्मेशन होता है तब एक स्टार का फॉर्मेशन नहीं होता है, बहुत सारे स्टार्स, हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स लाइक, और समटाइम्स इवन बिलियंस ऑफ स्टार्स एक साथ फॉर्म होते हैं। ठीक है, एंड जब वो एक साथ फॉर्म होते हैं दे फॉर्म समथिंग नोन एज क्लस्टर। ओके, क्लस्टर ऑफ और ग्रुप ऑफ स्टार्स। नाउ देयर आर two types of clusters that we can see in sky, but of course if you want to see these things, okay, we can see planets with naked eye, but if you want to see the features, if you want to see ring around Saturn, तब हमको टेलीस्कोप लगेगा, बट स्काई में सैटर्न हमको विजिबल होता है। बट अगर हमको ये क्लस्टर्स देखने हैं स्काई में तो हमको नेचुरली या तो बाइनोक्यूलर या फिर टेलीस्कोप होना काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो ये हमें डायरेक्ट नेकेड आई से नहीं दिखाई देते, कुछ क्लस्टर्स जो काफी बड़े हैं या फिर कुछ क्लस्टर जो काफी ज्यादा ब्राइट है वो हमको दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हमको उसको प्रॉपरली देखना है, प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है, तो एज आई टोल्ड यू वी नीड telescope to observe these clusters. Okay, so you can see here, now there are, you can see, as you can see, there are many stars, but if you see properly, these stars are clustered around two points. Okay, one, this is one and this is two. So these clusters, they are known as binary clusters. Okay, and they have some name which is known as H and Chi. So H and Chi are Greek alphabets. So these clusters they are known as H and Chi cluster. Okay, now let us move to another cluster. This cluster is known as Pleiades. Okay, this one is known as Pleiades. Okay, or we Indians call it as Kritika nakshatra. Okay, we call it, as I told you, we call it as Kritika nakshatra. तो हम Indians इसे कृत्तिका नक्षत्र कहते हैं। Okay, and as you can see, all these stars, okay, even in the earlier cluster and even in this clusters, they are not reddish color stars. Okay, all the stars that you see in this cluster, they are bluish color stars. So what does it mean? Okay, it means that all these stars, they are very hot stars, and they are newborn stars, because the newborn stars, okay, they are like very hot and they shine with blue color. So if I see any blue color star or white color star, हमको ये पता चल जाना चाहिए कि ये जो स्टार्स है वो कैसे न्यूबॉर्न स्टार्स है, एंड वो काफी ज्यादा हॉट स्टार्स है। ओके, सी हॉट मतलब क्या, उनके पास ज्यादा एनर्जी है। जब हम लोग लाइक यंग होते हैं या फिर जब हम लोग लेट्स से जवान होते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, बहुत सारा एनर्जी होता है, राइट। सिमिलरली स्टार्स जब यंग होते हैं उनके पास बहुत सारा एनर्जी होता है, एंड वो ये एनर्जी कैसे एमिट करता है, इन फॉर्म ऑफ देयर लाइट। So blue color light means more energy, and red color light means what, very low energy. So these red color stars, they are old stars, and उनके पास जो energy होता है वो क्या होता है, काफी कम होता है। So this is why the blue color stars, they shine, sorry, they have very high temperature. Okay, so now if you compare this cluster with the previous one, okay, with the Kritika nakshatra, you can see the stars जो है वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्टली बाउंडेड है, काफी ज्यादा टाइटली पैक्ड है। ओके, सो इसलिए ये जो टाइप का क्लस्टर होता है इसे हम लोग ग्लोबुलर क्लस्टर ऐसा कहते हैं। ओके, एंड जो हम लोग ने प्रीवियस क्लस्टर देखा उसे हम लोग कहते हैं, ये जो क्लस्टर है ये ओपन क्लस्टर है, एंड ये जो क्लस्टर है इसे हम लोग कहते हैं ग्लोबुलर क्लस्टर। अगर आप ग्लोबुलर क्लस्टर को देखेंगे तो ग्लोबुलर क्लस्टर में बहुत ज्यादा स्टार्स है कम स्पेस के अंदर। ओके, सो इफ आई वांट टू कंपेयर दीज टू क्लस्टर्स, तो आप कह सकते हो कि जो ओपन क्लस्टर्स है उसके अंदर ऐसा कह सकते हो कि हजारों स्टार्स होते हैं, बट ये जो ग्लोबुलर क्लस्टर्स होते हैं उसके अंदर लाखों या फिर लाइक बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, बहुत सारे स्टार्स ये ग्लोबुलर क्लस्टर के अंदर होते हैं। ओके, सो सिर्फ ये ग्लोबुलर क्लस्टर्स नहीं है स्पेस के अंदर। ओके, सो लेट अस सी, देयर इज समथिंग नोन एज नेब्यूले। ओके, जो हमारा स्पेस है उसके अंदर नेब्यूला है। नाउ लेट्स सी व्हाट दिस नेब्यूला इज। सो नेब्यूला का मतलब है क्लाउड। सो जो हमारा स्पेस है उसके अंदर क्लाउड्स होते हैं। सो क्लाउड जो हम लोग अर्थ पे देखते हैं, वाटर वेपर के क्लाउड जो हमारे
जिसकी वजह से हमको पानी मिलता है, रेन मिलता है, ये वो क्लाउड्स नहीं होते हैं। ये जो क्लाउड्स होते हैं स्पेस के अंदर, जो नेब्यूले होते हैं, वो हाइड्रोजन एंड हीलियम के, या फिर उसके अंदर और भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो ये मोस्टली जो डोमिनेंट मटेरियल होता है वो होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम। सो ये हाइड्रोजन एंड हीलियम के बहुत बड़े क्लाउड्स होते हैं स्पेस के अंदर। एंड ये क्लाउड्स का क्या नेचर है, क्या नेचर प्ले करते हैं इन यूनिवर्स? सो दिस क्लाउड्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टार फॉर्मेशन। सो जो स्टार का फॉर्मेशन होता है, स्टार्स जो फॉर्म होते हैं, वो ये क्लाउड्स के थ्रू फॉर्म होते हैं। सो हमने जो ओरायन कॉन्स्टलेशन देखा था, ये क्लाउड वो ओरायन कॉन्स्टलेशन के अंदर है, एंड दिस क्लाउड इज नोन एज ओरायंस नेब्यूले, सॉरी ओरायंस नेब्यूला, नेब्यूला इज फॉर प्लूरल, so this is Orion's Nebula. Okay, this is very famous. This is very famous nebula in space. The thing about this nebulae, okay, or the other objects like nebulae is that हमें उसके कलर्स नहीं दिखाई देते हैं। जब हम लोग उसको टेलीस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, जो कलर्स अभी हमको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, वो हमको टेलीस्कोप के अंदर से नहीं दिखाई देगा। सो अगर आप सोचो कि अरे वाओ कितना ब्यूटीफुल है, अगर हम लोग टेलीस्कोप से देखेंगे तो हमें ऐसे ब्यूटीफुल कलर्स विजिबल होंगे, तो वैसा नहीं होने वाला है। वाई? बिकॉज जब हम लोग डायरेक्टली उनको आंखों से देखते हैं, सो हमारे आंखों में उतना लाइक उतना कैपेसिटी नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं, कलर्स डिटेक्ट कर सकते हैं। सो नेचुरली हम डे टाइम why? Because I hope the sharing mode is on, ma'am. Yeah, it is on, but we are not yet able to see your screen. Now? Yeah, it's fine. It's fine. Yes. Yeah. The nebula, So as it is, the red one nebula is gone, and the purple and blue nebula is on the screen. so this was the earlier nebula that we saw. This is Orion's nebula. And as I was saying कि हमें जो colors दिखाई देते हैं, ये जो beautiful colors है, वो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। Why? Because जब हम लोग इन nebula को telescope के through देखते हैं, okay, जो उनका brightness होता है वो काफी कम होता है। So डीम लाइट के अंदर हमारी जो आंखें हैं वो कलर्स नहीं डिटेक्ट कर सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर जब हम लोग अंधेरे में कहीं जाते हैं, अगर हम अंधेरे में हमारे फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, अगर लाइट नहीं है, तो आप देखोगे कि हमारे बाजू में जो इंसान खड़ा है उसके हम लोग लाइक कलर्स नहीं देख सकते, राइट? उसके जो उसने जो कपड़े पहने हैं उसके कलर्स हम लोग नहीं देख सकते। वाई? बिकॉज ऐसा नहीं कि उसके कपड़ों में कलर्स नहीं है, बट हमारी आंखें वो डिटेक्ट नहीं कर पाती है डीम लाइट कंडीशंस में। सो सेम थिंग, हमारी आंखें टेलीस्कोप के थ्रू लाइक कलर्स नहीं डिटेक्ट कर पाती है। बट जब हम लोग फोटोग्राफ्स निकालते हैं ये ऑब्जेक्ट्स का, सो फोटोग्राफिक प्लेट्स या फिर जो कैमरास होते हैं वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कलर्स के लिए, तो इसलिए हमें फोटोग्राफ्स में कलर्स दिखाई देते हैं। ओके, सो इसलिए ऐसा टोल्ड यू, तो डोंट एक्सपेक्ट कि हमको अरे बहुत ब्यूटीफुल कलर्स दिखाई देंगे। बट हाँ, ये नेब्यूला हमको वैसे दिखाई देता है, बट सिर्फ ऐसा होगा कि हमको ग्रे कलर में दिखाई देगा। सो हमें टेलीस्कोप के थ्रू ऐसा दिखाई देगा कि एक कोई तो हमको क्लाउड दिखाई दे रहा है स्पेस में। ओके, सो दीज आर नेब्यूले। नाउ जो नेब्यूले होते हैं वो डिफरेंट टाइप के नेब्यूले होते हैं। अभी जो हमने ये नेब्यूला देखा, ओरायंस नेब्यूला, एंड ये नेब्यूला देखा, सो ये नेब्यूले काफी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर स्टेलर फॉर्मेशन या फिर स्टार का फॉर्मेशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि इनमें से जो है वो स्टार का फॉर्मेशन होने वाला है। ओके, बट कुछ नेब्यूले होते हैं वो जो स्टार के डेथ के बाद फॉर्म होते हैं। मतलब जो स्टार है जब उसका डेथ हो जाता है, आई मीन सी इवन स्टार का बर्थ होता है, दे इवॉल्व एंड फिर उनका डेथ होता है। सो उनका डेथ कैसे होगा वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि वो स्टार का मास क्या है। ओके, जो हमारे सन लाइक स्टार्स होते हैं उनका डेथ अलग तरीके से होता है। जो सन से ज्यादा मैसिव स्टार्स होते हैं, सन से बहुत ज्यादा बड़े स्टार्स होते हैं, जो when they die they form something known as supernova. So okay, supernova में क्या होता है, अगर supernova हुआ किसी स्टार का तो वो इतना ब्राइट वो स्टार हो जाएगा कि वो हमें इनफैक्ट दिन के वक्त भी विजिबल होगा। Okay, so there are different ways in which stars die and is completely dependent on what their masses are. Okay, so this is something known as planetary nebula. This one is known as ring nebula. So planetary nebula is type of nebula. So ring nebula comes under something known as planetary nebula. So when sun-like star, but sun-like star मतलब जो स्टार जिनका मास सन जितना है, जब उनका डेथ होता है, they form something known as planetary nebula. So actually sun क्या होगा, जो सन
का जब डेथ फेज काफी पास आएगा, जो सन है वो क्या करेगा, एक्सपांड होने लगेगा, धीरे धीरे एक्सपांड होने लगेगा, एंड वो ऐसा एक नेब्यूला फॉर्म करेगा। ओके, एंड जब सन एक्सपांड होगा तो प्रोबेबली वो मार्स तक का ऑर्बिट तक वो एक्सपांड हो जाएगा, इतना बड़ा सन हो जाएगा। ओके, सो लाइक ये भी एक टाइप का प्लैनेटरी नेब्यूला है। दिस वन इज नोन एज रोसेट नेब्यूला। Okay, and this one is known as Rosette Nebula. Again, this one is Ant Nebula. ये भी प्लैनेटरी नेबुला है। सन आई मीन एक प्लैनेट जो स्टार है, आप अभी भी उसके बीच में एक स्टार देख सकते हो। इसमें एक एक्सप्लोजन हुआ है, इसलिए जो जो लोब्स है, जैसे हम लोग एक्सप्लोजन में एक मशरूम क्लाउड देखते हैं, तो यहाँ पर ऐसे दो क्लाउड्स रिलीज हुए हैं। ओके, एंड दिस इज नोन एज क्रैब नेबुला। ये सुपरनोवा रेमिनेंट है। एक कॉन्स्टेलेशन है टॉरस। टॉरस के अंदर काफी साल पहले, 10,000 साल पहले एक सुपरनोवा हुआ था। ओके, सुपरनोवा हुआ था, एंड वो सुपरनोवा इतना बड़ा था कि वो जो स्टार है वो हमें दिन के वक्त भी विजिबल था। जो लोगों ने उनको देखा 10,000 साल पहले, उनको वो दिन के वक्त भी विजिबल था। सो आज जब हम वहां पर देखते हैं तो हमें वहां पर एक नेबुला दिखाई देता है। तो इसे हम लोग यूजुअली हम लोग उसे सुपरनोवा रेमिनेंट कहते हैं। सो जब स्टार सन से बहुत ज्यादा मैसिव होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये सुपरनोवा रेमिनेंट जैसे नेबुला फॉर्म करते हैं। सो आप देख सकते हो कि जो स्काई जो स्पेस है उसमें बहुत सारे टाइप के नेबुले हैं। आगे बढ़ते हैं। सो सिर्फ नेबुले नहीं है, जो हमने चीजें देखी अब तक, हमने देखा कि बहुत सारे स्टार्स है, स्टार्स के अराउंड बहुत सारे प्लैनेटरी सिस्टम है, नॉट जस्ट सन, बहुत सारे स्टार्स है, उनके अराउंड प्लैनेटरी सिस्टम है। फिर ये जो स्टार्स है वो बहुत सारे क्लस्टर्स बनाते हैं, एंड जो क्लस्टर्स है वो क्या करते हैं, वो क्लस्टर्स के बीच में भी कहीं ना कहीं नेब्यूले है। ये जो सारे क्लस्टर्स है या फिर स्टार्स है, उनका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, उनका फॉर्मेशन होता है नेब्यूले से। फिर जब उनका डेथ हो जाता है तब भी नेब्यूले फॉर्म होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो स्पेस में, ठीक है, जो अब तक हमने देखी, वो सारी चीजें साथ में आकर एक बड़ा सिस्टम फॉर्म करते हैं। ओके, एक बड़ा सिस्टम फॉर्म करते हैं जिसे हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। सो अब तक हमने जितनी सारी चीजें देखी वो एक गैलेक्सी के अंदर होते हैं। सो व्हाट आर दिस गैलेक्सी? सो बेसिकली दिस गैलेक्सी आर लाइक कलेक्शन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। ओके, सो एक गैलेक्सी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन स्टार्स होते हैं। ओके, एंड ये मैंने कहा एक गैलेक्सी के अंदर। ओके, बट ऐसी यूनिवर्स में मोर देन 100 बिलियन गैलेक्सीज है। सो आप देख सकते हो कि हमारी यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है। ओके, आप इमेजिन कर सकते हो। सो ये जो गैलेक्सी है उसके, ऐसा टोल्ड यू, उसके अंदर मोर देन 100 बिलियन स्टार्स है, बहुत सारे नेब्यूले हैं। ओके, सो ये गैलेक्सीज होती है वो काफी बड़ी होती है, लेकिन जो गैलेक्सीज होती है वो हमसे काफी ज्यादा दूर होते हैं। यहाँ पर जो गैलेक्सी हमें विजिबल है, यू कैन रीड, इट इज नोन एज एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड दिस इज आवर नियरेस्ट गैलेक्सी। Okay, it is nearest galaxy to our galaxy. We people are part of something known as Milky Way galaxy. Okay, हम एक मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। ओके, अर्थ सोलर सिस्टम के अंदर है, एंड जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है। ओके, एंड हमारी जैसी ही गैलेक्सी हमारे काफी पास है, जिसको हम लोग कहते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नाउ लेट अस सी कि कितनी पास है ये गैलेक्सी। ओके, सो लेट अस सी। So Andromeda galaxy, as I told you, is our nearest galaxy, and this galaxy is a distance of 22 lakh light years. Okay, when I say 22 lakh light years, let us see what this 22 lakh light year is. Okay, so yeah, so 1 light year, let us see what 1 light year is first. Okay, so what is speed of light? Speed of light is 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड। इस चीज का मतलब क्या है, जो लाइट है वो एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। हम लोग जो नॉर्मल स्पीड से ट्रैवल करते हैं वो क्या होता है, लेट्स से 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या, एक घंटे में हम लोग 100 किलोमीटर, लेकिन लाइट क्या करती है, एक सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। सो इतना स्पीड के साथ, विद स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, वो एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ओके, वो डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज नोन एज 1 light year. ओके, सो 1 light year इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सो एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ओके, विद स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, दैट डिस्टेंस इज नोन एज 1 light year.
Okay, and this galaxy is at distance of 22 lakh light year. So अगर हमें ये गैलेक्सी पर जाना है, okay, and if we start traveling with speed of 3 lakh kilometer per second, तो हमको ये गैलेक्सी पे जाने के लिए हमको लगेगा 22 लाख ईयर्स. ओके, इतना दूर ये गैलेक्सी हमसे है. सो कैन नाउ यू कैन इमेजिन कि ऑफ कोर्स सिर्फ स्टार्स बड़े नहीं है, सिर्फ स्टार्स या फिर उसकी जो यूनिवर्स के अंदर चीजें, सिर्फ उनका डिस्टेंस, आई मीन जो उनके मेजर्स है, सिर्फ इनफैक्ट इन जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंसेस भी काफी ज्यादा बड़े हैं. Okay, so you can imagine how huge our space is, how huge our universe is. Okay, now there are different types of galaxy. हम लोग कहते हैं कि जो हमारा galaxy है, it's like something known as spiral galaxy. Okay, and what we see in these types of galaxy, in spiral galaxies, is that you can see that there are spiral arms coming out of center. So we say that our galaxy is a spiral galaxy, and you can see that you can see some dark patches and some bright patches in these galaxy. And these dark patches and white patches, they are very important for star formation because यहाँ पर nebulae होते हैं. Okay, then there are different shapes of galaxies. The one we saw is like spiral galaxy. Okay, in spiral galaxy में भी different shapes होते हैं. जैसे I'll just go back. You can see there are different arms coming out. कुछ galaxies में क्या होता है, काफी कम आर्म होते हैं. यहाँ पर like you can see the 3 or 4 arms coming out. कुछ galaxies में सिर्फ 2 arms होते हैं. ठीक है, so there are different types of spiral galaxies, and then there are something known as irregular galaxies. ओके, सो इरेग्युलर गैलेक्सीज एक्चुअली वो क्यों होता है कि बहुत बार क्या होता है, जो गैलेक्सीज है वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं. जैसे आई विल जस्ट अगेन गो बैक, आप देख सकते हो कि ये जो स्पाइरल गैलेक्सी है वो ये गैलेक्सी के साथ इंटरैक्ट करिए मतलब ये दो गैलेक्सीज है वो कोलाइड हो रहे हैं एक दूसरे से. सो जब ये कोलाइड हो गए तो नेचुरली उनका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एंड देन दे विल फॉर्म समथिंग नोन एज इरेग्युलर गैलेक्सीज. So these are like irregular galaxies. They don't have any shape. Okay, बट जो गैलेक्सीज होते हैं, जो मेन गैलेक्सीज होते हैं, यू कैन सी उनके अराउंड भी सैटेलाइट होता है. जैसे हम लोग ने प्रीवियस इसमें देखा था कि वो गैलेक्सी एक छोटे गैलेक्सी के साथ इंटरेक्ट कर रही थी. सो वो जो छोटी गैलेक्सी थी वो उस गैलेक्सी का सैटेलाइट था. जैसे हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ का सैटेलाइट है मून. सो वैसे ही गैलेक्सीज के साथ भी छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, उनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ओके, सो ये हमारा लास्ट पार्ट है ये स्लाइड ये सेशन का. ठीक है, विल जस्ट सी लाइक व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज आर देयर, एंड उसके बाद एक छोटा सा वीडियो है 8 मिनट का. अगर इन केस मैं वीडियो प्ले करती हूँ एंड अगर वो ये नहीं हो रहा है, प्रॉपरली प्ले नहीं हो रहा है या फिर अटक रहा है, ऑफ कोर्स तो मैम के साथ ये स्लाइड शो है, प्रोबेबली शी विल आपके साथ वो शेयर करेंगे. सो यू कैन देन यू कैन सी दैट वीडियो. Okay, so these are different types of galaxies. Like this is spiral galaxy, but this one is known as barred spiral galaxy. Why barred spiral galaxy? Because आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक ऐसा बार है, मतलब एक ऐसा रेक्टेंगल है, एंड वो रेक्टेंगल के थ्रू यू कैन सी दैट द स्पाइरल आर्म्स आर कमिंग आउट. ओके, एंड ये भी एक टाइप का स्पाइरल गैलेक्सी है, बट जब हम उसको देख रहे हैं वो हम उसको ऐसा लाइक फेस ऑन व्यू नहीं देख रहे, वो हमारे लिए टेढ़ी है. ओके, so this galaxy is known as sombrero hat because जब हम उसको टेलीस्कोप से देखते तो वो एक हैट जैसा हमको दिखाई देता है. So this is what this galaxy is known as sombrero's hat. Okay, and this one is known as needle galaxy. edge on view है, मतलब हम उसको हमारे लिए टेढ़ी है ये गैलेक्सी. हम जब देखते हैं टेलीस्कोप से, तो हमको जब टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है ये गैलेक्सी एकदम थिन है, थिन लाइन जैसी दिखाई देती है, लाइक नीडल. So this is why we call this galaxy as I told you, needle galaxy. Okay, so I will stop here. जो कुछ भी हमने अब तक देखा, okay, so वहां से हमारा एक व्यू क्या था कि हमें बेसिकली क्या देखना था कि हम हमारे यूनिवर्स में कितने लाइक वी आर नेग्लिजिबल, कितने छोटे हैं. ओके, सो यही पूरे हमारे सेशन को दिस वीडियो विल कंक्लूड. ओके, सो आई विल जस्ट प्ले दैट वीडियो. There's no sound.
Okay, so initially the objects, now these people are showing these are different satellites of planets. These are different moons in our solar system. Okay, I guess you saw Sirius B and Procyon B. So Sirius B and Procyon B, these are stars. Okay, you can see that some of these stars, they are like small as compared to planets. Okay, so some of these stars, they are very huge. Some of these stars, they are very small as compared to planets. So you can see these two stars, Sirius B and Procyon B, they are smaller. They are even smaller than our Earth.
Okay. So, Okay, Renuka, have you received any questions on your personal chat? uh, just a minute, ma'am. Yeah, because I haven't received any. So if you have received, so please check. Take your time. No, no, there are no questions. Okay, anyways. Anybody wants to ask any questions to Renuka ma'am? Okay, there are a few questions from Tarushi. Okay. Okay. Yes, David, you Okay, can I guess type it down. those are own notes, I guess. Okay, okay, okay. Acha, okay, they were notes. That's nice. Yeah, yeah. Okay, and there's one question, ma'am. Do you believe in multi-universe theory? Her question is, I'll repeat. Her question is, do you believe in multi-universe theory? The thing is, like as I told you, like people earlier used to believe that like our Earth is the only planet or like only system to have life form. But now we know that there are many planets, or people earlier used to think that solar system is the only planetary system in our universe. But now we know that almost all stars, okay, around 95% of the stars in galaxies, they have solar systems around them. Similarly, the stars in other galaxies, even they have solar systems around them. So it is possible that our universe is not the only universe that is there. But again, then these are like there are theories. Okay, like what type? If there is some other universe, then what will be its type? Some people say that there are many universes, like our own universe. That universe that we see, everything that we see, okay, is from our universe. But we don't know what things are there in the other universes out there. So if there are other universes, we'll call those universes as multi-universe. So, and it is not necessary that things that we do or like we observe in our universe is like similar in that universe. It is possibly like laws of physics or laws of science that we follow in our universe. It's like completely opposite in other universe. It is possible, but we don't know really about it. These are still theories. People say there are something known as parallel universe. So it's like kind of funny, like we people eat ice cream, like human eat ice cream in our universe. It is possible that ice creams, they will eat human in that universe. So like these are theories. Okay, anyone? Any questions? Guys, please chat in or ask. Okay. Okay. Okay, there's one more question Yes. from Divit. Okay, the question is, if we go inside black hole, then where will we go? So the thing is, we exactly don't know. But the thing is, about black hole, that we say that the black hole is point where of infinite density. Okay, and the properties of space and time that we know will invert. Like we know that in our universe, or like here.
We can walk back and forth in space, but we cannot go back and forth in time. Okay, but inside in your black hole, what happens is these two properties, they will be inverted, and then we will not be able to walk in space, but we can walk back and forth in time. So like this is what people say, like what this is what will happen inside a black hole. Okay, but again the thing is, exactly where we people will land in what time and what time will land, we don't know. Probably I guess people are familiar with this movie, Interstellar movie. शो तो शायद आपने उसके लास्ट एपिसोड में देखा रहेगा, सॉरी लास्ट सीन में आपने देखा रहेगा कि दैट जो जाता है वहां पर, उसके सामने बहुत सारे ऐसा बुक शेल्फ जैसा कुछ तो होता है, एंड वो वहां पर चला जाता है, एंड देन वो उसको पता चलता है कि जो वो पास्ट में था अपने घर में चला गया है. सो बेसिकली उसने क्या किया, वो ब्लैक होल के अंदर गया है, एंड वो एक टाइम फ्रेम के मतलब पास्ट में चला गया. ओके, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग वो चोजन टाइम फेज में ही जाएंगे, कहीं पर भी जा सकते हैं. सो लाइक दिस इज व्हाट पीपल से कि ब्लैक होल में जाने के बाद क्या हो सकता है. बट थिंग इज कि विल नेवर नो कि मतलब कोई चीज ब्लैक होल के अंदर जा रही है या फिर कोई चीज ब्लैक होल के अंदर कंप्लीटली गई है. बिकॉज जैसे ही कोई चीज ब्लैक होल के पास जाना स्टार्ट करती है, उसके पास से आने वाला जो इंफॉर्मेशन है वो आना बंद हो जाता है. द थिंग व्हाई वी कॉल दिस पॉइंट एज ब्लैक होल, बिकॉज वहां पर डेंसिटी काफी ज्यादा होता है. आई विल जस्ट टेक 2 minutes मैम. No issues, no issues. जो हमारा अर्थ है उसका वी हैव एस्केप वेलोसिटी. लाइक अगर मुझे अर्थ से एस्केप करना है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से एस्केप कर अगर मुझे कहीं बाहर जाना है इन स्पेस, तो हमें एक वेलोसिटी से जंप करना पड़ेगा, एंड दैट वेलोसिटी इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. अगर हम इतने वेलोसिटी से अगर अर्थ के बाहर जाने का कोशिश करेंगे, ओनली देन वी कैन एस्केप आवर अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड. Okay, and this gravitational field, this escape velocity is like dependent on mass of that body. Okay, जुपिटर के अगर जो वेलोसिटी से मैं अर्थ के बाहर जा रही हूँ, वही सेम वेलोसिटी से मैं जुपिटर के बाहर नहीं जा सकती. वाई? बिकॉज जुपिटर का मास काफी ज्यादा है, तो उसका एस्केप वेलोसिटी काफी ज्यादा है. नाउ व्हेन इट कम्स टू ब्लैक होल, उसका जो एस्केप वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है. सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, इवन वहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता है. सो दिस इज वाई, एंड व्हाट वी डिटेक्ट, व्हाट वी पीपल सी इज लाइट. अगर वहां से लाइट ही नहीं आ रहा है, तो नेचुरली वहां पर क्या हो रहा है हमें कभी दिखाई ही नहीं देगा. सो दिस इज वाई वी कॉल इट एज ब्लैक होल, बिकॉज वहां पर जो हो रहा है हमें उसका कुछ इंफॉर्मेशन हम तक आ ही नहीं रहा है. ओके, सो बेसिकली अगर कोई चीज ब्लैक होल के अंदर जा भी रहा है, तो हमको वो कभी दिखाई नहीं देगा कि उसके साथ हो क्या रहा है. सो एग्जैक्टली वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन अगर कोई चीज ब्लैक होल के अंदर जाती है. बट देयर आर थ्योरीज कि ऐसा हो सकता है कि वहां पर स्पेस एंड टाइम इन्वर्ट हो सकता है. Okay. Just check any other questions. Renuka? And the question is, do you believe? I guess Yeah, it's it is done. related question. Yeah. Do you believe in multi-universe theory? This was a previous question, and the next part is, uh, It it will will crush us. crush us. So basically, we don't know. So basically, we say that I'm not talking about multi-universe. So when it comes to our universe, we say that our universe is expanding universe. And the reason we say that, because we see that all these galaxies, okay, they are moving away from each other. So this is why we say that universe is expanding, and it's not just expanding; it is also accelerating. So the thing is, then there are different theories. If it is expanding and or if it is accelerating, so probably ऐसा हो सकता है कि वो आगे जाके उसका acceleration कम हो जाए, and probably again it will start like coming together, and शायद वो एक दूसरे में crush हो जाएगा. So this theory is known as big crunch. Okay, and there are different theories जो कहते हैं कि नहीं, probably ऐसा कुछ होगा नहीं, big crunch कुछ होगा नहीं, probably our universe will keep on expanding. So there are different theories, but we don't know exactly that. मतलब कोई एक specific theory नहीं है इन चीज़ों को support करने के लिए. Proofs नहीं है basically. Theories काफी ज़्यादा है. Renuka, no other questions? Uh,
No, ma'am. Okay, I'll switch on my video. Okay. Renuka, can you hear me? Yes, ma'am. Yeah. Thanks a ton, Renuka, for such a wonderful, wonderful lecture on the universe, and I'm sure all kids have enjoyed. Whosoever have enjoyed, please write in yes, 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 or enjoyed in the chat box. Fast, fast, come on, kids, come on. And And thank you very much, ma'am, for this opportunity. And the aim of this session was to basically provide exposure for these kids. I hope that they will take interest in this subject, and yes, probably they'll try to pursue it. Not even if not as a career, even if they do it as a hobby, like it's a great achievement for us. that's great. That's great, Renuka. Guys, you all know that ki Renuka ma'am is trainer for Indian team of International Astrophysics and Astronomy Olympiads, and she's a great astronomer. And after asking to her, I will get back to you and give her the inputs for the following her on Insta or following her on Facebook, so that you can if you have any questions, you can directly ask to her. Okay, thanks a lot, Renuka. Thanks a lot for your valuable time and doing it Welcome, greatly ma'am. for us. We enjoyed it thoroughly. Thank you very much. Thank you, Renuka. Bye bye. See ya. Bye.